Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in Organic Chemistry lab. Our previous experiment was purification of organic compounds. उस एक्सपेरिमेंट में हमने बेंजोइक एसिड की प्योरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन की थी. So today our experiment is thin layer chromatography. So let's start with the definition of chromatography. Chromatography, it actually comprises on two words. The first one is chroma, which means color, and the second is graphy, to write. So it is a color writing technique. अगर आप क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री की बात करें, दिस टेक्निक was invented in Russia. An Italian born scientist who is actually a botanist, Mikhail Zvet, who invented this technique in Russia. So first time in Russia this technique was used. So the scientist who was a botanist, he purified the plant extract. He extracted or separated the plant pigments like chlorophyll, xanthophyll and carotene. So this technique, all these plant pigments, they have different color. So that's why it is known as a color writing technique. So the types of chromatography. Generally speaking, there are two types of chromatography based upon the stationary phase. So first one is adsorption, and the second partition chromatography. So in adsorption chromatography, our solute components, they are adsorbed on a stationary phase, and the adsorbent used may be silica gel or alumina. So in this technique like TLC or CC, so the components of the mixture, they are separated by selective desorption from this stationary phase. So it means mobile phase, it runs on the stationary phase adsorbent and selectively dissolve these components which are present in this mixture. So the separation actually based upon the interaction of this solute components with the stationary phase and the mobile phase. तो अगर stationary phase के साथ इन components की जो interactions हैं वो strong होंगी, then components, they are strongly held at the stationary phase and it is difficult to separate these components with some non-polar solvents. So for this separation we may use some more polar solvents. The second type is partition chromatography. So here you can see that your stationary phase is solid and adsorbent, but in this case, in case of partition chromatography like paper chromatography and gas chromatography. So commonly we are called them liquid-liquid, liquid-liquid chromatography, or this is gas-liquid chromatography. So in this case the stationary phase is a liquid, and in case of paper chromatography the mobile phase is also liquid, so that's why it is referred as liquid-liquid chromatography. And in case of gas chromatography, the stationary phase is liquid, a semi-solid, which upon heating it is converted into a liquid, and your mobile phase is a gas, commonly known as carrier gas. So we may use helium or we use nitrogen as a carrier gas. अगर आप पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो जो सल्यूट कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन टू फेजेस, लिक्विड लिक्विड फेजेस और गैस लिक्विड फेजेस. आप अगर इसको कंपेयर करें
तो जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं इन सेपरेटिंग फनल, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमारे पास दो लिक्विड्स होते हैं विच आर इमिसिबल एंड दे फॉर्म टू लेयर्स. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव इथाइल एसीटेट or we have water or we have for example n-hexane or benzene and we have water. So these are immiscible liquids. They form two layers and you extracted your compound from this mixture. So our components which we have to separate it in solvent extraction, they distribute themselves in these two phases. So same is the case here. Solute components, they distribute themselves, and carrier gas in this case it separate the components of the mixture. So here we have paper chromatography in which water molecules, they are held in cellulose, they act as stationary phase, and in this case TLC and column chromatography we used solid stationary phase here known as adsorbent. So let's start with TLC. So the purpose of TLC to separate components of a mixture. So it means by applying this technique, thin layer chromatography, we can separate the components which are present in a mixture. Identification of organic compounds. So unknown organic compounds, they can be identified. For example, अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड एक कंपाउंड है और आप देखना चाह रहे हैं कि ये इस मिक्सचर में मौजूद है या नहीं, तो आप विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, TLC, suppose here you have mixture and here you have unknown compound. So mixture, if suppose it give 2 or 3 spots and then this unknown compound it appeared here. Okay, so this is A, B and C. So it means your compound it may be B because both these compounds they have same RF value. So this technique it can be applied for identification of unknown compounds. Next is purification of organic compounds. So just like recrystallization, in case of recrystallization we purify our solid organic compounds. हमने उनको जो है वो किसी ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जो कि रूम टेम्परेचर पे उसमें सॉल्युबल नहीं था, एंड व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर सो इट विल बिकम सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट, एंड मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी उस कंपाउंड की उस सॉल्वेंट में हमने अटेन की थी बेंजोइक एसिड की वाटर में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो वहाँ भी हमने प्योरीफिकेशन की इम्प्योर बेंजोइक एसिड की. तो यहाँ थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में भी आप प्योरीफाई कर सकते हैं अपने इम्प्योर कंपाउंड्स को. फर्ज करें अगर आपके पास यहाँ 2-3 स्पॉट्स हैं, दैट शो दैट योर कंपाउंड दे आर इम्प्योर. से फॉर एग्जांपल हियर so if you develop this chromatogram and you have like that, so it show that this compound is impure because it contains some impurity like that. Okay, so we can purify our organic compounds. तो आप प्योरिटी चेक भी कर सकते हैं और आप उससे जो है वो प्योरीफाई भी कर सकते हैं. दिस टेक्निक इट कैन बी अप्लाइड बोथ फॉर क्वालिटेटिव पर्पस एंड क्वांटिटेटिव पर्पस. तो प्योरीफिकेशन के लिए जब आप इसे जो है वो अप्लाई करेंगे देन इट इज रेफर्ड एज प्रेपरेटिव थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी. मैं भी उसे एक्सप्लेन करूंगा. Next is to monitor progress of a reaction. So it means this technique is also helpful in monitoring the speed of a reaction
और प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, आप ये चेक कर सकते हैं अगर आप एक रिएक्शन करें तो आफ्टर 30 मिनट्स और आफ्टर 1 आवर यू कैन चेक द प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन, हाउ मच ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रिएक्शन करते हैं बेंजोइक एसिड का एथेनॉल के साथ और इससे आप बनाते हैं so this is esterification in which benzoic acid react with ethanol in the presence of sulfuric acid catalyst giving us ethyl benzoate. This is your product ethyl benzoate and this is your reactant. तो अगर आप इसकी TLC करें then you can check the conversion of reactants into products. For example, here you have benzoic acid which is your reactant and this is reaction mixture. So when you develop this chromatogram, then here reactant spot appeared here, benzoic acid, and here two spots they appeared. So this type of TLC, it showed that some of the reactant benzoic acid is converted into product which is ethyl benzoate, but still unreacted benzoic acid present in this reaction mixture. And after 1 hour or 2 hour or 3 hour, if you again perform this TLC and you have this situation, it shows that all of the reactant benzoic acid is converted into product ethyl benzoate. So it means thin layer chromatography, it can be used to monitor the progress of a reaction. So this is somehow theory of chromatography. So let's start with experimental steps which are involved to perform the thin layer chromatographic experiment. First is experimental steps. So after this theoretical explanation of chromatography, we then explain the practical demonstration of this experiment. So first is preparation of TLC plates. So TLC plates, they can be prepared बाय सिलिका जेल स्टरी. अगर आपके पास जो है वो सिलिका जेल है, सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ हमारे पास एक प्लेट है, ये आप प्लेट देख सकते हैं. तो ये जो है वो स्मॉलर प्लेट. अगर आपने बड़ी जो है वो सेपरेशन करनी है, प्रेपरेटिव TLC करनी है, तो उसके लिए आपके पास जो प्लेट होगी उसका साइज़ जो है वो 20x20 का होगा. तो ये आप देख सकते हैं. तो अगर आप इस पे जो है वो सेपरेशन करेंगे, दिस इज़ फॉर प्रेपरेटिव थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. और अगर आप इस पे करते हैं, दिस इज़ यूज फॉर क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो आप सिलिका जेल की स्लरी बना के आप इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस साइज इज़ 20x20 और इसका साइज जो है वो 4x7 का जो है वो होगा. इसकी हाइट 7 और इसकी जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर जो है वो होगी. और जो है वो मार्केट में हमारे पास प्री कोटेड TLC प्लेट भी जो है वो अवेलेबल होती है. तो यहाँ एल्यूमिनियम पे जो है वो सिलिका जेल अप्लाई किया. इस सिलिका जेल में बाइंडर होगा कैल्शियम सल्फेट और इसमें फ्लोरेसेंट मटेरियल भी जो है वो ऑलरेडी एडेड होता है विच कैन बी हेल्पफुल फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द स्पॉट अंडर UV लाइट. ये मैं लेटर ऑन जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँगा. सो प्रेपरेशन ऑफ TLC प्लेट, यू हैव सिलिका जेल स्लरी. आप सिलिका जेल स्लरी को ले लें बीकर में. सिलिका जेल को आप यहाँ जो है वो ऐड कर लें. दिस इज सिलिका जेल. सो जो अगर आपने प्रेपरेटिव करनी है तो उसी रेशो से आप इनको जो है वो ज़्यादा आप ले लेंगे. देन यू ऐड सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म ले लें या आप डाइक्लोरोमीथेन ले लें. फिर आप इसको जो है वो थोड़ा मिक्स कर लें. आप स्टरिंग करेंगे. सो आफ्टर
10 मिनट्स 5 मिनट्स आप स्टरिंग के बाद आपकी स्लरी जो है वो प्रिपेयर्ड होगी। इसी स्लरी को आप इस टीएलसी प्लेट पे, ये जो स्लरी आपने सिलिका जेल की स्लरी बनाई, आप इसको यहाँ प्लेस कर दें। तो जैसे आप इसे यहाँ प्लेस करेंगे, आफ्टर सम टाइम सॉल्वेंट इवेपोरेटेड, आप इसे एक्टिवेट कर लें, तो ये आपकी प्लेट जो है वो रेडी होगी फॉर यूज़, जो मैंने अभी आपको बताई। अगर आपके पास ये साइज 4 है, 4 सेंटीमीटर, और ये जो है वो 7 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ फॉर क्वालिटेटिव टेस्ट। और अगर आप बड़ी प्लेट जो है वो उस पर स्लरी जो है वो अप्लाई करते हैं, मीन अगर उसका साइज जो है वो आप ज़्यादा ले लें, तो ये जो है वो 20 बाई 20 सेंटीमीटर, और ये भी जो है वो, तो फिर आप जो है वो इस पर प्रेपरेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस या इसे प्रेपरेटिव थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो कहेंगे। सो योर प्लेट्स नो यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप इज first is preparation of TLC plates and second is spotting, कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनको आप जो है वो यहाँ अप्लाई कर लें। सो सपोज आपके पास जिसे आपने टेस्ट करना है प्योर है या कंपोनेंट्स को जो है वो सेपरेट करना है, जो भी कोई भी कंपाउंड है आपके पास, सपोज वी हैव बेंजामाइड है, या आपके पास बेंजोइक एसिड है, या आपके पास सैलिसिलिक एसिड है, या आपके पास एस्प्रीन है, या आपके पास कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास पैरास्टामोल है। तो ये एस्प्रीन, पैरास्टामोल, इट मीन्स आप ड्रग्स की प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं, ड्रग्स का जो है वो एनालिसिस भी आप इस पे जो है वो कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर आप इनको जो है वो टेस्ट करना चाह रहे हैं, देन दीज आर द योर सल्यूट्स। अब आप इसे जो है वो इसका आपने स्पॉट लगाना है, तो इसी किसी भी कंपाउंड को या मिक्सचर को आप जो है वो डाल लें टेस्ट ट्यूब में। सो यहाँ आप जो है वो कोई भी सल्यूट वन, अगर आप सपोज आपके पास पैरास्टामोल है एंड यू हैव टू चेक इट्स सॉल्युबिलिटी, तो आप इसका जो है वो सोल्यूशन बना लें, पैरास्टामोल ले लें और इसमें आप कोई सॉल्वेंट डाल दें जिसमें ये सॉल्युबल हो। तो ये सोल्यूशन जो आपके पास है 1% या 0.1% जो है वो, ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर स्पॉटिंग। तो आपके पास TLC प्लेट, यहाँ अब आपने स्पॉट लगाना है, ये जो सोल्यूशन आपने बनाया है इसका। तो सबसे पहले आप बेस लाइन लगा लें, एक लाइन जो है आप ड्रा करें, हाइट ऑफ दिस लाइन इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, तो दिस इज 1 सेंटीमीटर। इसी तरह आप जो है वो एक लाइन ऊपर लगा दें, दिस इज आल्सो 1 सेंटीमीटर। सो यू हैव बेस लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन, and this is solvent front. So it mean baseline बॉटम के पास है जहां आपने जो है वो स्पॉट लगाना है, और ये आपका सॉल्वेंट फ्रंट है जहां तक ये सॉल्वेंट जो है वो राइज करेगा, जहां तक ये फ्लो करेगा जब आप इस क्रोमेटोग्राम को डिवेलप करेंगे। तो इसकी स्पॉटिंग के लिए जो है वो आप इस कैपिलरी ट्यूब से आप जेट बना लें। अगर आप डायरेक्टली ये कैपिलरी ट्यूब जो है वो यूज़ करेंगे फॉर स्पॉटिंग, तो समटाइम्स ये भी हो सकता है कि इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो, स्पॉट का जो स्पॉट आपने लगाया, तो स्पॉट का जो साइज़ है अगर बड़ा होगा, सपोज आपने ये स्पॉट लगाया, इसका जो साइज़ है वो 2 to 3 मिलीमीटर होना चाहिए। इफ़ अगर आप जो है वो इस कैपिलरी ट्यूब से जो है वो स्पॉट लगाएंगे, देन मे बी इट्स साइज इज लार्जर। तो जब साइज बड़ा होगा तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप जब इसे क्रोमेटोग्राम डेवलप करेंगे तो वहाँ टेलिंग जो है होगी। सो टू अवॉइड टेलिंग आप इस कैपिलरी ट्यूब को
जेट में जो है वो कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इस कैपिलरी ट्यूब को अगर आप हीट करेंगे और इसके दोनों एंड जो है वो आप अपोजिट साइड पे जो है वो खींचेंगे, देन यू कैन इजीली प्रिपेयर सच जेट्स, देन यू कैन कंट्रोल द साइज ऑफ दिस स्पॉट। सो दिस इज अबाउट स्पॉटिंग ऑफ दिस TLC प्लेट, जो आपने पहले स्टेप में जो है प्रिपेयर की, फिर दूसरे स्टेप में आप इसको जो है वो स्पॉटिंग कर लें। सो नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ दिस क्रोमैटोग्राम। Development of chromatogram spores. Next step, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमैटोग्राम। वही प्लेट, सपोज आपने जो है वो, ये प्लेट थी आपके पास, आपने यहां स्पॉट लगाया था। अब आप इसको रख लें किसी जो है वो TLC चैम्बर में, या आप इसे बीकर में भी रख सकते हैं। ठीक है, यहां आप रख लें, जिसमें आप ऐड कर देंगे मोबाइल फेस। मोबाइल फेस, सो मोबाइल फेस एक्चुअली कोई एक सॉल्वेंट है या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, ये मे बी वन सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके पास एसिटिक एसिड है, आपके पास एथेनॉल है, आपके पास एसीटोन है, आपके पास डाईइथाइल ईथर है, आपके पास एनहेक्सीन है। तो ये जो आप मैंने सॉल्वेंट की लिस्ट दी है, दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर पोलैरिटी। सो डाउन फ्रॉम एसिटिक एसिड टू एनहेक्सेन, polarity is gradually decreased, and from enhexane to diethyl ether and acetone and ethanol or carboxylic acid, polarity is increased. आप यहाँ देख भी सकते हैं, here we have carboxylic acid group, hydrogen bondings are present, so this is most polar group, and here we have hydroxyl, also hydrogen bondings are present, but it is less polar as compared to carboxylic acid, and then gradually polarity is decreased. Here we have carbon oxygen bond. So in this molecule hydrogen bondings are not present, but this carbon oxygen bond is polar. So here we have partial negative, partial positive. It is polar in nature. So having polarity, but less as compared to ethanol and acetic acid. Diethyl ether, again carbon oxygen bond, but it is still less polar as compared to acetone, and then we have हेक्सेन। तो आप यहाँ अगर एक सॉल्वेंट जो है वो लेते हैं तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन अगर फर्ज करें एक सॉल्वेंट से आपकी जो सेपरेशन है इन कंपोनेंट्स की वो नहीं हो पा रही, तो आप मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट जो है ले लें, एक पोलर ले लें और एक आप नॉन पोलर ले लें। द वेरी इंपॉर्टेंट इज, जो आपने सॉल्वेंट लेना है, ये मिक्सचर जो है वो, इसकी जो हाइट है इस प्लेट की वो 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इट मीन्स कि ये जो स्पॉट है ये इस सॉल्वेंट में डिप ना करे। इफ दिस स्पॉट इज मिक्स्ड और डिप्ड इनटू दिस सॉल्वेंट, तो फिर इसकी सेपरेशन आप नहीं कर पाएंगे, ये यही डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सो इट मीन्स ये जो हाइट थी ये थी 1 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने ये सॉल्वेंट की जो हाइट है वो 0.5 सेंटीमीटर तक जो है वो रखी। आप इसे रखें और ऊपर से आप इसको कवर कर लें। थोड़ी देर बाद सैचुरेशन होगी, ड्यू कैपिलरी एक्शन, ये सॉल्वेंट जो है वो अबव मूव करेगा। जैसे ये अबव मूव करेगा, अगर फर्ज करें ये जैसे मूव करता है, डेवलप आप कर रहे हैं इस क्रोमैटोग्राम को, और ये जो इसकी जो सेपरेशन इस तरह जो है वो हो रही है, टेलिंग, दिस इज टेलिंग। इट मीन्स कि जो सॉल्वेंट आपने सिलेक्ट किया है फॉर इट्स सेपरेशन,
वो जो है सूटेबल नहीं है। और यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टेशनरी फेस के साथ बहुत स्ट्रांगली जो है वो बाइंड हैं और वो मूव नहीं कर रहे विद मोबाइल फेस। तो आपको ग्रेजुअली पोलैरिटी इसकी जो है वो इंक्रीज करनी है। फ़र्ज़ करें आपने एसीटोन और हेक्सेन का मिक्सचर लिया है या एथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर लिया है, तो आप एथेनॉल की अमाउंट बढ़ा दें। अगर एसीटोन और हेक्सेन का मिक्सचर है तो एसीटोन की अमाउंट बढ़ा दें। तो जैसे ही आप इसकी पोलर सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो बढ़ाएंगे तो आपके पास अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, सपोज देन दिस combination of solvents like hexane or acetone or ethanol, ये suitable है for separation of components of this mixture. So this is the development of क्रोमेटोग्राम। आपने जो है वो क्रोमेटोग्राम को डेवलप किया और इसके बाद आप जो है वो इन स्पॉट्स को, अगर फर्ज करें ये स्पॉट जो है वो कलर्ड हैं, तो फिर तो आप जो है वो इन ऑर्डिनरी लाइट इनको देख सकते हैं। बट अगर ये योर कंपाउंड्स दे आर कलरलेस, क्योंकि इन द स्टार्ट ऑफ दिस टेक्निक, जब ये टेक्निक इन्वेंट हुई उस वक्त जो है वो जो प्योरिफिकेशन हो रही थी या सेपरेशन थी, वो जो है वो मिखेल ज्वेट था, ज्वेट ने जो है वो प्लांट पिगमेंट्स जो है वो सेपरेट कर रहा था। लेकिन अभी अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें या आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर कलरलेस। तो आपको फिर जो है वो उनको देखने के लिए, उनको विजुलाइज करने के लिए कुछ टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। सो नेक्स्ट स्टेप इज विजुलाइजेशन ऑफ स्पॉट्स। सो फॉर विजुलाइजेशन ऑफ स्पॉट्स आप इसी प्लेट को जो है वो यूवी लैंप में ले लें। ठीक है, ये सिलिका जेल है। सिलिका जेल में मैंने आपको शुरू में बताया बाइंडर भी जो है वो अटैच होता है ताकि वो इस प्लेट के साथ अटैच हो जाए, और दूसरा इसमें फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो ऐड कर देते हैं। जैसे आप इसे यूवी लाइट में रखेंगे सारी प्लेट जो है वो ग्लो कर रही होगी। तो जैसे ही सारी प्लेट ग्लो कर रही, जहाँ ये कंपाउंड होगा वो इसको, इस सारी सरफेस को ब्लॉक किए होगा और वहाँ ग्लोइंग आपको नज़र नहीं आएगी। इस तरह आप इन स्पॉट्स को विजुलाइज कर सकते हैं। अनदर वे कि आप इसी प्लेट को जो है वो, यही जो आपने क्रोमेटोग्राम डेवलप किया, आप इसे जो है वो रख दें कहीं, सपोज यहाँ हम ले लेते हैं आपके पास इस तरह, आप इसे आयोडीन चैम्बर में रख दें। यहाँ आयोडीन पड़ी है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये आयोडीन के वेपर्स बनेंगे, ठीक है। जैसे वेपर्स बनेंगे तो जहां स्पॉट होगा वहां ये डिपॉजिट होना शुरू होंगे। तो इस तरह भी आप इन स्पॉट्स को विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ स्प्रेइंग एजेंट्स हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, इट कैन आल्सो बी यूज फॉर विजुलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दीज स्पॉट्स और निनहाइड्रन और कुछ सोल्यूशन जो कलर्ड कंपाउंड्स के सोल्यूशन हैं उनके डायरेक्ट आप प्लेट पे जो है वो स्प्रे करते हैं। सम टाइम आफ्टर ऑक्सीडेशन स्पॉट्स दे अपीयर्ड एज कलर्ड स्पॉट्स। एंड नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ RF वैल्यू। So here we have A and it is B. This is solvent front. Okay. This is solvent front and it is distance traveled by solvent front, and then we have spot A, this is baseline, so it is distance traveled by compound A, and then we have this compound. So this is distance traveled by compound B. Okay.
So suppose the distance traveled by this solvent front is 5 centimeter. Distance traveled by this compound A is 2.5 centimeter, and distance traveled by this compound B is 3.5 centimeter. So by applying the formula of RF, calculation of RF value. What are RF? RF is retardation factor. Okay, this is retardation factor. Sometimes it is also known as retention factor, or it is also known as ratio to front. So RF is equal to distance traveled by spot, जो भी है A या B, divided by distance traveled by solvent front. So फर्ज करें RF of A is equal to distance traveled by spot is 2.5 centimeter and solvent front 5 centimeter. Then you can calculate RF value by dividing 2.5 with 5, या आप जो है वो RF of B is equal to 3.5 centimeter. This is distance traveled by spot B, and then 5 centimeter. This is distance traveled by solvent front. So this is the way to calculate the RF value. So it means the compound which travel greater distance over the stationary phase, its RF value is higher as compared to the compound which travel smaller distance. और इसी डिस्टेंस से या RF वैल्यू से आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके सल्यूट कंपोनेंट की, कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी की किसके साथ इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है, स्टेशनरी फेज के साथ या मोबाइल फेज के साथ. बिकॉज वी ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि यहाँ जो सेपरेशन है वो सिलेक्टिव डिसॉर्प्शन है. आपके सल्यूट कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ भी हैं और मोबाइल फेज के साथ भी हैं. तो जहाँ ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी, अगर मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा हैं तो वो मोबाइल फेज के साथ मूव करेगा, और अगर आपके पास ये इंटरेक्शन जो है वो स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा हैं तो वो मूव नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि आप एक टीएलसी करते हैं और ये आपके पास सपोज आपने एक टीएलसी जो है वो की, डेवलप की इसे, और आपका ये कंपोनेंट जो है वो यहाँ चले जाते हैं. इट शो दैट कि जो आपने सॉल्वेंट लिया है वो बहुत ज़्यादा पोलर है, आपका कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्युबल है और वो स्टेशनरी फेज उसे हेल्ड नहीं कर पा रही और वो सॉल्वेंट फ्रंट के साथ जो है वो मूव कर गया. तो ये भी सूटेबल नहीं है. इसलिए आप जो है वो देयर इज़ अ कंपटीशन between interaction of solute component with stationary phase as well as mobile phase. अगर stationary phase के साथ बहुत ज़्यादा stronger interaction होगी तो separation नहीं होगी, और अगर mobile phase में बहुत ज़्यादा जो है वो soluble होगा, ज़्यादा stronger interaction होगी तो वो solvent front के साथ जो है वो चला जाएगा. तो ये this is the best position of these spots. यहाँ हम कह सकते हैं कि best resolution हुई है. So this is all about theory of this chromatography. So as I told to you, this lecture, this is comprehensive explanation of theoretical and experimental demonstration of thin layer chromatography. So let's start the practical demonstration of each step which are involved in the experiment of chromatography. अभी हम जो है वो प्लेट प्रिपेयर करेंगे, स्पॉट लगाएंगे और फिर उसे जो है वो डेवलप करेंगे और विजुलाइज करेंगे. First we discuss the materials or chemicals which are required to perform this experiment. So let's discuss one by one the apparatus or the chemicals or the things which are used to perform this experiment. So here you can see that,
So these are the materials which we required to perform this experiment. This is TLC plate. These are the chemicals which we have to check their purity. This is mobile phase. This is a beaker. ये मैं use करूँगा for to develop chromatogram. So let's discuss one by one. So here we have TLC plate. You can see that this is TLC plate. So don't touch this TLC plate on this surface, क्योंकि अगर आप इसे टच करेंगे तो UV लैम्प में जब आप इसे जो है वो देखेंगे तो फिर इस पे भी जो है वो आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो नज़र आ सकते हैं. सो दिस इज TLC प्लेट. आई यूज हेयर प्री कोटेड एल्यूमिनियम TLC प्लेट. और TLC प्लेट कैसे आपने प्रिपेयर करनी है ये मैंने आपको बता दिया था. So these are two compounds. One of them is benzoic acid and one is benzamide. Just I checked their purity. I selected these two compounds to perform this experiment. Already I have prepared the solution of these two compounds. Here you can see that I label A and B. Just to recall, this is A is compound benzoic acid and B is benzamide. Okay. This is mobile phase. I selected n-hexane and acetone mixture of these two solvents to perform this experiment. Ratio of these two solvents, n-hexane is 2 and acetone is 1. 2:1 में मैंने इसको जो है वो select किया. आप 3:1 में भी ले सकते हैं, 4:1 में भी ले सकते हैं, 1:1 में भी ले सकते हैं. जहाँ इस तरह की जो है वो सेपरेशन हो आप उससे जो है वो प्रेफर कीजिएगा. ओके, तो मैंने ये जो है वो 2:1 सिलेक्ट किया है और फिर देखते हैं किस तरह इसकी सेपरेशन होती है. सो दीज आर जेट्स. दिस इज बीकर. इसे मैं यूज़ करूँगा एज अ चैम्बर, TLC चैम्बर. और ये मैं लिड है जस्ट टू कवर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद स्पॉटिंग ऑफ दिस TLC प्लेट. सो फ्रॉम द बॉटम we draw a baseline और इसी तरह आप मार्क कर दें फ्रॉम द अपर एंड सॉल्वेंट फ्रंट. ओके, तो आपने यहाँ बेसलाइन और सॉल्वेंट फ्रंट मार्क कर दिया और यहाँ आप इसे जो है वो लिख सकते हैं A. आप इसे कह सकते हैं सॉल्वेंट से ऊपर लिखते हैं A एंड B. ओके, सो AB इट्स शोन कि आप यहाँ A का स्पॉट लगाएंगे और वहाँ आप B का जो है वो स्पॉट लगा देते हैं. दिस इज A, दिस इज जेट विच आई हैव प्रिपेयर्ड. तो आप इसको सॉल्यूशन ले लें इस जेट में और आप यहाँ स्पॉट लगा लें. जेट से जब आप स्पॉट लगाएंगे तो आप साइज ऑफ दिस स्पॉट बहुत ईजीली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. तो B के लिए आप एक नया जेट लेंगे बिकॉज इफ़ यू यूज़ द सेम जेट तो फिर जो है वो प्रॉब्लम होगी. हेयर कंपाउंड B, another jet and then we spot this. Okay. So just wait to dry these spots. ऑर्डिनरी लाइट में ये अपीयर नहीं हो रहे और यूवी लैम्प में जब हम देखेंगे तो वहाँ ये अपीयर होंगे. यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये 2 स्पॉट्स लगाए इन 2 कंपाउंड्स के और अभी मैंने डेवलप नहीं किया और वो स्पॉट यूवी लैम्प में अपीयर हो रहे हैं. अब हम इसको जो है वो डेवलप करेंगे. सो फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम एज आई टोल्ड टू यू मैंने ये सॉल्वेंट ऑलरेडी लिए हेक्सेन और एसीटोन 2:1 और इसे आप जो है वो ले लें इस बीकर में और इसकी हाइट इतनी हो ये 0.5 सेंटीमीटर तक TLC प्लेट यहाँ डिप कर सकते हैं आप. इससे ज़्यादा आपके जो स्पॉट्स हैं, अब ये जो प्लेट है जिस पे हमने स्पॉट लगाए हैं ये हम उस पर जो है वो रखेंगे डेवलप होने के लिए और इस चीज़ का हमने ख्याल रखने के ये बेस लाइन ये उस सॉल्वेंट में डिप ना हो. So here
आई पुट दिस TLC प्लेट एंड देन आप इसे कवर कर दें इस लिड के साथ, और आप देख रहे हैं स्लोली बाय कैपिलरी एक्शन दिस मोबाइल फेस वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द सॉल्वेंट फ्रंट, और जैसे ये मूव करेगी वैसे ही जो सल्यूट कंपोनेंट्स हैं उनको सिलेक्टिवली जो है वो डिसॉल्व कर रही है। सॉल्वेंट इट रीच द सॉल्वेंट फ्रंट लाइन, तो आप ये जो है वो निकाल लें और इसे थोड़ा ड्राई होने दें। अब ये सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट फ्रंट तक जो है वो पहुँच जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन ऑर्डिनरी लाइट ये स्पॉट यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस प्लेट को जो है वो UV लैंप में लेके जाएंगे तो वहाँ ये स्पॉट अपीयर होंगे, तो फिर आप विजुअलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप ना तो स्पॉट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं और ना ही आप इनकी RF वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट द स्पॉट्स दे आर विजिबल अंडर UV लाइट। इफ यू ऑफ दिस UV लाइट देन स्पॉट्स दे डिसअपियर, बट व्हेन यू ऑन दिस UV लैंप तो उस लाइट में आप इन स्पॉट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब सेंटर ऑफ द स्पॉट से आप इनका डिस्टेंस जो है वो नोट कर लें, और फिर सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस जो है वो नोट करने के बाद आप RF वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि दोनों ये जो स्पॉट हैं इनकी RF वैल्यू डिफरेंट है। इट मीन्स बोथ आर नॉट सेम कंपाउंड्स। सेकेंडली आप ये देख सकते हैं कि दोनों में जो है वो ऑलमोस्ट सिंगल जो है वो स्पॉट है, शो दैट कंपाउंड्स आर प्योर। Now I calculate the RF value just by circle these spots, and the center of these two spots I mark now. So here you can see that I have marked these two spots A and B. उनके मैंने जो है वो सेंटर को भी जो है वो मार्क कर दिया। तो जब आप इन स्पॉट्स को UV लैंप में विजुअलाइज करने के बाद मार्क कर लेंगे, then it's easy to calculate their RF value. So let's calculate the RF value. So this is the formula which we can use to calculate the RF value. RF is equal to distance traveled by spot A and divided by distance traveled by the solvent front. तो जो TLC आपके पास है आप उसको जो है वो मेजर कर लें, सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस और स्पॉट का जो आपका कंपाउंड A है और B है उनका डिस्टेंस, और इस फार्मूले को अप्लाई करके आप RF वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ thin layer chromatography. As I told to you, we can also perform quantitative analysis, जैसे शुरू में हमने कहा था purification of organic compounds by thin layer chromatography. So to purify these compounds we used 20 by 20 plate, so quantitative analysis in case of thin layer chromatography is called preparative thin layer chromatography. आप प्लेट ले लें 20 by 20 की, ओके, एंड देन जिस कंपाउंड को आपने प्योरीफाई करना है आप उसका सोल्यूशन बना रहे हैं किसी सॉल्वेंट में जिसमें वो सॉल्युबल हो, और वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, और जो है वो उसी सोल्यूशन को जब हम TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर रहे होते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए, तो हम सिर्फ एक स्पॉट जो है वहाँ लगाते हैं। बट इन दिस केस आप जो है वो पिपट से या किसी जो है वो ड्रॉपर से आप एक बैंड लगा देंगे उस मिक्सचर का जिसको आपने प्यूरिफाई करना है, ओके, और फिर आप इसको रख देंगे TLC टैंक में, एंड देन द मोबाइल फेस आप यहां वन सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ले लें और इसे आप जो है वो कवर कर लें। तो जैसे ही आप सॉल्वेंट का मिक्सचर TLC टैंक में लेंगे, सो बिफोर टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट आप उसे थोड़ी देर सैचुरेट होने दें, मिक्स होने दें, आप थोड़ा शेक भी कर सकते हैं, तो वो दोनों सॉल्वेंट जो है वो अच्छी तरह उसमें मिक्स हो जाएंगे, और फिर आप प्लेट अपनी यहाँ डिप कर लें। फिर ख्याल रखें कि ये जो आपने बैंड लगाया है ये इस सॉल्वेंट के साथ टच ना करे, अदरवाइज सेपरेशन नहीं होगी, एंड देन बाय कैपिलरी रिएक्शन ये सॉल्वेंट जो है वो राइज करेगा अबाउट टुवर्ड्स द सॉल्वेंट फ्रंट। तो अब यहाँ जो है वो वहाँ तो आपके पास इस तरह एक स्पॉट,
और फिर जो है वो ये दूसरा स्पॉट, यहाँ एक सिंगल जो है वो स्पॉट की फॉर्म में अपीयर होते थे और यहाँ आपके पास दो बैंड्स आ जाएंगे। ओके, इस तरह। और फिर okay, this is post solvent front. So here you have two bands, one for compound A and other for compound B. तो आप इसी बैंड को यहां से मार्क कर लें शार्प, और फिर आप इसको स्क्रैच करके, स्पैचुला से स्क्रैच करके जो है वो बीकर में ले लें। इसी को स्क्रैच करके यहां डाल दें। ओके, सो दिस इज योर बैंड ए। इट मीन्स कि यहां आपके पास सिलिका जेल भी है और आपका कंपोनेंट ए भी है, एंड देन यू ऐड सम सॉल्वेंट। अब आपने ऐसा सॉल्वेंट यहां सिलेक्ट करना है जिसमें आपके कंपाउंड की, वो कंपाउंड ए जो यहां है उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो। ठीक है, अननोन भी होगा तो आप जो है वो आपको यहां आप जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं। दिस कंपाउंड इट्स स्मॉलर आरएफ वैल्यू, तो ये ज़्यादा पोलर है, तो आप पोलर सॉल्वेंट यहां ऐड कर लें ताकि ये मैक्सिमम डिजॉल्व हो जाए। अब यहां अब हमने इससे जो है वो अपने कंपाउंड को जो है वो निकालना है बाय फ्रॉम दिस सिलिका जेल। तो ये आप जैसे ही सॉल्वेंट इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी देर आप इसे स्टर करें। आफ्टर स्टरिंग फिर आप इसे जो है वो फर्नल में फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लें। तो जैसे ये सारा आप सॉल्वेंट और इसमें जो मिक्सचर है आपके पास सिलिका जेल कंपोनेंट है यहां डालेंगे तो आप इसे फिल्टर कर लें। सो दिस फिल्ट्रेट इट कंटेन्स ओनली योर कंपोनेंट ए, और इस सॉल्वेंट को आप बाय इवेपोरेशन, सो इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर अगर आप इसकी जो है वो परफॉर्म करेंगे तो आप इसको जो है आपके पास जो है वो प्योरीफाइड कंपोनेंट ए होगा। और यही स्ट्रेटेजी आप कंपोनेंट बी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर टू सेपरेट दिस कंपोनेंट बी फ्रॉम सिलिका जेल। So this is all about theoretical and experimental explanation of thin layer chromatography. In my next experiment, I will explain the principle, basic principle, and then procedure, and then experimental demonstration of column chromatography. Thank you very much.